पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री को लोग चाहिए एंड स्टूडेंट को स्किल्स चाहिए। हेल्थ केयर इज एन इंडस्ट्री वेयर ऑलमोस्ट 65 to 70 lakh jobs are open, so we are looking to kind of crack that market and get students to various hospitals and healthcare agencies and healthcare companies. What we did and what everyone should do is identify industries जहाँ पे लोगों की कमी है, right? You have to fill the gap जहाँ पे industry is looking for people. Hello everyone, this is Simran Rajpal and you're watching Jagran Josh. Today we have Mr. Akash with us, Senior Vice President, Embosity. So here comes my first question for you, sir. What is the vision of Embosity for students, and what is your main goal or criteria that you serve to your students? So a lot of us come from small cities, right? And when we go to these smaller cities and also large cities, we find a problem कि बच्चे पढ़ रहे हैं but jobs नहीं लग रही है, right? A lot of people are graduating. Every year over 2 crore students are graduating, but not even 10 lakhs are getting jobs, right? So our aim is how do we get by 2027 every year at least 10,000 students towards a job, right? छोटी शुरुआत है, but what we want is कि nationally ये number बढ़े. So we are working with various partners and how do we skill students, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री को लोग चाहिए एंड स्टूडेंट को स्किल्स चाहिए. सो हाउ डू वी एलिवेट दैट? आई थिंक दैट्स द विजन, दैट गेटिंग 10,000 पीपल टुवर्ड्स जॉब्स अक्रॉस द कंट्री, राइट? ब्रिंगिंग दैट एक्सेसिबिलिटी एंड एवरीथिंग अराउंड. तो हम ये करना चाह रहे हैं एट एम्बसिटी. वी आर राइट नाउ इन ऑलमोस्ट 25 cities, right, with our mission in motion. So very, very exciting times and really thankful to Jagran team for blessing us with this award. Okay, and sir, if we talk, as you told us, you want to provide jobs to at least 20,000 students in India, or you can say worldwide as well. So, अभी तक आपने इस टारगेट को कितना अचीव किया है? We started almost 2 years back, 1.5 2 years back, right? हमने पहला साल पिछले साल देखा and we saw a lot of students coming to us, right? We are partnered with lot of universities and उनके साथ हम काम कर रहे हैं and we see students are very, very interested in courses which are now job oriented. For example, हमने पहले साल में healthcare पे काफ़ी काम किया. Healthcare is an industry where almost 65 to 70 lakh jobs are open. So we are looking to kind of crack that market and get students to various hospitals and healthcare agencies and healthcare companies. तो हमें फर्स्ट ईयर ही काफ़ी सक्सेस मिला. वी वर देयर इन ऑलमोस्ट 10 cities. वी सॉ लॉट ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट ईयर. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू अस. वी सॉ ग्रेट फीडबैक. स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा मार्केट जब स्टडी किया तो समझ में आया हेल्थ केयर में कोर्सेज हैं बट इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड नहीं है. लोग पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते बट इंडस्ट्री को देखते ही नहीं. सो वी हैव इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री इन एवरी बिट ऑफ इट. सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन. तो इसी साल इसी के लिए हमने कुछ ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स में वी हैव स्टार्टेड आवर ओन थिंग, राइट, वेयर स्टूडेंट्स कम एंड गेट ग्रेजुएशन डिग्रीज in partnership with top universities and in partnership with NSDC, Healthcare Sector Skill Council, and in partnership with a lot of hospitals and healthcare companies that are partnered with us. Okay, sir, as you know, the theme for today is Teach for India and NEP 2020, that is New Education Policy 2020. So, how is your institute or how you are implementing it? And the other thing, what do you think are the main pointers in this new NEP that we should focus on? So NEP, जैसा आपने देखा है, is enabling a lot of vocational education, right? The whole point of NEP is कि student पढ़े और job की तरफ जाए, right? Government के intentions बहुत अच्छे हैं कि how can we get more and more students towards job. तो उन्होंने क्लास 7th 8th 9th सबसे vocational कुछ ना कुछ include किया है, so that everything that is going on, right, results to a job. पहले सिर्फ BSc आपका बैचलर्स इंग्लिश हो रहा है, बैचलर्स लिटरेचर हो रहा है. आज उसके साथ गवर्नमेंट ने AI, कॉपी एडिटिंग, ये सब इंक्लूड किया स्किल्स, राइट? सो आज NEP में सबसे बड़ा ये फ़ायदा है. ऑल्सो गिविंग स्टूडेंट अ ट्रांसपेरेंसी, राइट? हम जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट की बात कर रहे थे, हाउ डू स्टूडेंट्स गेट द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी उनके साथ, उनके क्रेडिट्स कितने आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एंड फाइनली हाउ डू वी इंटीग्रेट विद इंडस्ट्री. आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि लोग पढ़ रहे हैं बट इंडस्ट्री इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है. इंडिया में IIMs IIT सबसे बेस्ट क्यों हैं? क्योंकि आप देखोगे उनके बच्चे जाके इंटर्नशिप करते हैं टॉप कंपनीज में, वो एक्सपोजर बहुत पहले आ जाता है और वो हर कॉलेज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती. सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू एवरी स्टूडेंट इन एवरी सिटी इन देयर ओन सिटी, सो दैट कि आज के समय किसी को अपना शहर छोड़ कर ना जाना पड़े और वहाँ पर वो पढ़ के फिर जॉब की तरफ बढ़ सके. Okay, here comes my last question for you. So, how is Embosity ensuring young people graduating are job ready and go towards a guaranteed job?
Great question. I think first of all, what we did and what everyone should do is identify industries जहाँ पे लोगों की कमी है, right? You have to fill the gap जहाँ पे industry is looking for people. For example, healthcare में, as I told, 65 lakh jobs are open. Similarly, hospitality, banking, there are multiple fields like these where there's a lot of jobs, right? बट हमारे आज के समय बच्चे सभी आज की तरफ तब भी सॉफ्टवेयर की तरफ भाग रहे हैं. ऐसा नहीं कि वहाँ जॉब्स नहीं है, पर बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ ऐसे भी कोर्सेज करें जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं. इंडस्ट्री चाहती है कि बच्चे आगे हमारा कोर्स करें, बट बच्चे नहीं आ रहे हैं. सो हमारा जॉब सबसे पहले है कि एजुकेट द किड्स अबाउट दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़, राइट. हम इसमें इंडस्ट्री को इंटीग्रेट कर रहे हैं. हमारे कोर्सेज में इंटर्नशिप इनबिल्ट है और बच्चा इंटर्नशिप में थोड़ा स्टाइपेंड भी कमाता है. सो द फर्स्ट टेस्ट ऑफ गेटिंग अ सैलरी स्लैश स्टाइपेंड इज़ विद इन द ग्रेजुएशन टाइम. तो बच्चा जब आके इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप करता है, तो हम लोग हमेशा कॉर्पोरेट जार्गन में जोक करते हैं कि यार हमें ना फ्रेशर भी चाहिए विद एक्सपीरियंस. हम एक्चुअली वही बना रहे हैं. वी आर गेटिंग फ्रेशर्स who have certain years of experience by working in internship. They might not be complete employees, but they have understood the life cycle of it. बच्चों को अपना इंटरेस्ट भी समझ में आता है, इंडस्ट्री को समझ में आता है बच्चा कितना अच्छा है, सो दैट बाय द टाइम ही ग्रेजुएट्स, ही और शी ग्रेजुएट्स, देयर इज अ जॉब वेटिंग फॉर देम. वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के समय पहला कदम ही सबसे डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, एंड दैट इज व्हाट वी आर एनेबलिंग देम टू डू. Okay, thank you so much. Thank you.